So in today's session, we'll take some MCQs on Unit 1 and Unit 2. But before that, let me just uh, quickly revise all the formulas, okay, or all the statistical tools from first 2 units, okay. So if you refer this sheet, this formula sheet, immediately you can start solving the MCQs on these topics, okay. So first formula is arithmetic mean. I think इसमें मोड मीडियन और मोड का फॉर्मूला नहीं होगा, that you can refer from a PDF, okay. So arithmetic mean, this is the formula. X bar equal to summation of xi upon k, the sum of all the observation divided by total number of observation. This is your ungrouped data, you can say. Next is in frequency case, summation of fi xi upon total number of observation, second formula. As I already told you, this part is not there in your syllabus, that you can skip, ठीक है. तो यह ऑलरेडी मैं स्टार करके रख रहा हूँ. दिस पार्ट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ओके. यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम पीडीएफ आल्सो. ग्रुप जो डाटा था उसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, ठीक है. सो ये आप नहीं भी प्रिपेयर करते तो भी चलेगा. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला. अंडर रूट ऑफ 1/k समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. 1 मार्क के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही रहेंगे, ठीक है. And for calculation purpose, we need to simplify this. Then it become 1/k summation of xi square minus x bar square. This is in one bracket, correct? Similarly, in case of frequency distribution, it become 1/n, k replaced by n, fi xi minus x bar whole square. And the simplified form is xi square में fi multiply होगा. fi xi square minus x bar whole square. This is the formula. More standard deviation means more variability, means less consistency, and vice versa, okay. So this is the formula of standard deviation. Next is variance. Standard deviation is equal to under root of variance or sigma square equal to variance. Next is coefficient of variation. It is equal to standard deviation upon arithmetic mean multiplied by 100. So that same result you can follow for this also. More CV, more variability, less consistency, and vice versa. Moment. The rth moment about mean, that is mu r, is defined like this. 1/k summation I runs from 1 to k xi minus x bar raised to r, okay. In our syllabus we have to focus on only first 4 movements, 1 2 3 4, r equal to 1 2 and 3 4. And mu dash r is actually a movement. This is the movement about a point A, okay. So mu dash r is actually a movement about a point A. And what is the relation between mu r and mu dash of r? These are the relation, okay. मैंने आपको बोला था आपको किसी ना किसी लॉजिक से या कोई एक ट्रिक से आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने, अदरवाइज साइन की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है. सो mu1 इज ऑलवेज 0, mu2 इज mu2 डैश माइनस mu1 डैश होल स्क्वायर, mu3 इज mu3 डैश माइनस 3 mu1 डैश mu2 डैश प्लस 2 mu1 डैश क्यूब, mu4 इज mu4 डैश माइनस 4 mu1 डैश mu3 डैश प्लस 6 mu1 डैश स्क्वायर mu2 डैश माइनस 3 mu1 डैश रेस्ट टू 4, okay. So you have to remember these results. There is no सिंप्लीफिकेशन बाय विच यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस रिजल्ट. इसके पीछे प्रूफ लेंदी है, इसलिए आपको इसको याद ही रखना होगा. नेक्स्ट इज मीन, ओके. सो यूजिंग मूवमेंट यू कैन फाइंड मीन एंड इट इज इक्वल टू दैट पॉइंट प्लस mu1 डैश. mu1 डैश इज द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट कैपिटल A. Standard deviation is equal to under root of mu2, where mu2 is the movement about mean. Coefficient of skewness beta 1 is mu3 square upon mu2 cube, okay. ये corrected formula है. mu3 square upon mu2 cube. If beta 1 is positive, positive skew, negative, negative skew, equal to 0 means normal distribution. Kurtosis means mu4 upon mu2 square. If it is greater than 3, then it is leptokurtic. Less than 3 means mesokurtic, and equal to 3 means platykurtic. This is also you can refer as normal distribution. Next is correlation. It is in between two variables x and y, and it is defined as covariance upon standard deviation of x upon into standard deviation of y, where what is covariance? It is 1/n summation xi minus x bar multiplied by yi minus y bar. But again, for a calculation purpose, we need to simplify this. Then the simplified formula become this: 1/n summation I runs from 1 to n xi yi in one bracket minus x bar into y bar, okay. And then the formula of standard deviation as x and standard deviation of y, I think you all are aware about that. Okay. In frequency case, just we have to replace this n by capital N and multiply this by fi, okay. And the second case,
for a calculation purpose we need to simplify this, then it become fi xi y minus x bar y bar. Okay, वैसे भी रिपीट होगा अभी MCQs लेते समय. This r is always lies between -1 and 1. Correct, this r is always lies between -1 and 1. This is very very important. And okay, can anyone just tell me whether we have finished that regression part? को याद आ रहा है कंप्लीट हुआ था क्या या कुछ रिमेनिंग था उसमें? आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड, बट याद आ रहा है आपको रिग्रेशन हमने कंप्लीट किया था या नहीं? एनीवन? बोलो, रिग्रेशन हमने किया था कि नहीं? Yes, sir. Y on x, x on y. Whether we have taken these examples, for a given x find y, for a given y find x. ये आगे के लिए थे क्या एग्जाम्पल्स? आई डोंट थिंक सो कि ये हमने किया था. ये थर्ड क्वेश्चन आप बोलो. Whether we have completed this third example, the regression equations are given. We have to find mean values, the correlation between x and y, and standard deviation of y. Whether we have taken this? No, sir. Okay. Okay. So yeah. So what I will do, I will again take this topic regression. उसके बाद उसके immediately MCQs भी complete कर लेता हूँ, and फिर हम रिवर्स जाएंगे. अभी रिग्रेशन के MCQs, कोरिलेशन के MCQs, ऐसे रिवर्स जाने वाले. तो सारे यूनिट के एक और बार मैं आपको सारे क्वेश्चन, सारे MCQs एक और बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स आता है, आप इमीडिएटली मुझे यहीं पे स्टॉप कर दो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक और बार एक्सप्लेन करो. ओके, बट अब ये क्लियर करना है क्योंकि इसके बाद मैं कभी भी इसके रिवीजन नहीं लेने वाला हूँ. दिस इज द लास्ट, दिस 2 लेक्चर्स आर ओनली फॉर द रिवीजन ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2, बिकॉज इसके बाद आप मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हो आफ्टर योर आई, एंड फिर ये सब कुछ रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी स्मॉल डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप इमीडिएटली बोल दो. डोंट थिंक दैट कि अदर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे. आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पूरा है कि आप इमीडिएटली मुझे स्टॉप कर सकते हो. ओके, सो लेट मी अगेन क्विकली repeat this topic. Okay, so what is the regression? Can anyone tell me what is the regression? क्या करने वाला आप regression में? What is regression? Just tell me rough idea. The relation between the variables. Sorry, can you repeat? The relation between the two variables of data. Yes. Okay, so correlation gives you the type of relation, whether it is directly proportional, inversely proportional, like that. Okay, or there is no relation. And regression, in regression you will actually get that relation. Okay, and here we focus on only linear relationship between the variables. Okay, so to calculate that relation present between two variables x and y, in our syllabus we have these two equation. Okay, one is regression line y on x and second is regression line x on y. Okay, both these line gives you relation. ठीक है, इन दोनों, ये दोनों क्या एक रिलेशन ही है. these are the two types of relation that you can determine relation present between the variables x and y. Okay, so let me just first take this regression line y on x. Okay, so what is that? What is the regression line y on x? Y minus y bar is the mean, byx into x minus x bar. What is byx? This byx is called as slope of the regression line. Okay, this is one word. Second, we also call it as regression coefficient. Okay, so what is this byx? There are many words. What is this byx? एक आप बोल सकते हो slope of the regression line, or you can use the word regression coefficients. Okay, so into x minus x bar, और ये याद रखने में सिंपल है. y on x में y से स्टार्ट करना है, x on y में x से स्टार्ट करना है. Remember like this. Now what is the formula of byx? This is the standard formula. So byx is r means coefficient of correlation, sigma y upon sigma x. जिस सीक्वेंस में आपका कोएफिशिएंट है उसी हिसाब से लेना है. byx में y पहले आता है, x बाद में आता है, तो sigma y upon sigma x. bxy में r तो एज इट इज, x पहले आता है, y बाद में आता है, तो sigma x upon sigma y. So I think it is easy to remember these regression coefficients. And x on y में x minus x bar equal to bxy y minus y bar. दोनों का आप एक टाइम पे याद रख सकते हो. Now we know the definition of r, coefficient of correlation. So it is equal to covariance upon their standard deviation. So covariance upon sigma x into sigma y, multiply by the sigma y upon sigma x as it is. So you can cancel this sigma y and you will get sigma x square in the denominator.
तो याद रखो बी वाई एक्स में y से इक्वेशन स्टार्ट होता है तो नीचे x आता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, बी एक्स वाई में x से इक्वेशन स्टार्ट होता है नीचे y आता है सिग्मा वाई स्क्वायर। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फॉर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो आपको बस करना क्या है, रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज व्हाट, मीन, दोनों का मीन कैलकुलेट करना है, देन यू विल गेट दैट इक्वेशन डायरेक्टली। Okay, and we all know the formula of covariance, standard deviation of x and standard deviation of y. So I think and these are the important results. Okay, इस पे ही सारे क्वेश्चन सारे MCQs बेस है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट फर्स्ट रिजल्ट, ये आप अभी हो चुका है, बी वाई एक्स इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, these are called as regression coefficients. And if you multiply, if you take the product of these two regression coefficients, you will get by(x) into bxy. Just take the direct product, तो ये टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे and you will get r square. So that gives me r is equal to plus or minus under root of their product. ठीक है, बट आपको क्या करना है, तो ये प्लस साइन कौन से केस में देना है, माइनस साइन कौन से केस में देना है, इसके लिए फिफ्थ और सिक्स्थ रिमार्क है, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, if both values are positive, if both values are positive, give the plus sign. Okay, if both values are negative, give the minus sign. This is the result for the R. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो, आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो, बट कहाँ, बट यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट. So there is one more way to find the coefficient of correlation, but using regression coefficients. Remember this. पे भी डायरेक्ट MCQs आने वाले हैं. फिर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. So these two results, this remark 3 and 4, actually differentiate these two regression lines. What is the role of y on x and what is the role of x on y? X on y. Okay? यहाँ से आपको एक क्लियरली डिफरेंस समझ में आ जाएगा उन दोनों लाइन्स में. What is the role of y on x? Y on x is used to calculate y. Y on x is used to calculate y when x is given. X on y is used to calculate x when y is given. Okay, so this is the difference between y on x and x on y. Now the last remark is this. As we all know, this is the equation of regression lines, y minus y bar byx into x minus y bar, x minus x bar. X minus x bar equal to bx by y minus y bar. These are the standard formulas for regression lines. Okay, so if you check these two equations carefully, okay, what you will come to know here, that this point means if I put x equal to x bar, if I put y equal to y bar in both this equation, okay, so it actually satisfies these two regression lines. ओके, सो द पॉइंट x बार y बार अगर आप पुट करके देखते हो कि दोनों इक्वेशन में x की जगह पे x बार रखो, y की जगह पे y बार रखो, ओके, ये सो दिस पॉइंट x बार y बार सैटिस्फाइज बोथ दिस इक्वेशन. तो इसका यूज आपको करना है टू फाइंड द मीन ऑफ x बार एंड मीन ऑफ y बार. ओके, इस पे आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं. सो जस्ट रिमेंबर दिस लास्ट रिजल्ट, दैट पॉइंट x बार y बार satisfies the equation of lines of regressions. Okay, any doubt in this 7 remarks? ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें? प्लीज टेल मी यस और नो. यस और नो में आप बोलो. एनी डाउट इन दिस 7 रिमार्क? यस, प्लीज टेल मी लाउडली. इफ नॉट यस और नो में तो आंसर दे सकते हो आप, बोलो. No, sir, no doubt. So I think we have already taken these examples, है ना. We have given the values of x, we have given the values of y, और आपको regression lines calculate करने. So these are the regression line y on x and x on y. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? मीन चाहिए, byx चाहिए, यहाँ पे भी मीन चाहिए और bxy चाहिए. तो byx का फॉर्मूला, bxy का फॉर्मूला, तो वहाँ पे कोवेरियंस आ रहा है तो आपको कोवेरियंस चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो मैंने एक टेबल कंसिडर किया, कोवेरियंस के लिए एक एक्स वाई कॉलम मुझे चाहिए, है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे एक्स स्क्वायर कॉलम चाहिए और वाई स्क्वायर कॉलम चाहिए. ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है शायद. एक्स बार कैलकुलेट किया, वाई बार कैलकुलेट किया, कोवेरियंस कैलकुलेट किया, सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो, करेक्ट. सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो, सिग्मा वाई स्क्वायर कैलकुलेट करो, यू विल गेट बी वाई एक्स, यू विल गेट बी एक्स वाई. नेक्स्ट इज नाउ जस्ट पुट all these values here.
सो वाई माइनस वाई बार में वाई बार की वैल्यू पुट करो, बी वाई एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स बार की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, मतलब -8 को राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल गेट दिस, एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस -8 को यहाँ पे शिफ्ट करके, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज y ऑन x. इन अ सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट x ऑन y. ठीक है. हाँ, अब इसके आगे एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर आपको x गिवन है तो यहाँ से आप y कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको y गिवन है यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो. इतना ही पार्ट मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड किया है कि y x गिवन के लिए y कैलकुलेट करो एंड y गिवन के लिए x कैलकुलेट करो. ठीक है. अदर प्रोसेस सिमिलर है ना. सो आई विल जस्ट शो यू दिस कैलकुलेशन इन अ सिमिलर वे. कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यूज, sigma x square, sigma y square, bxy, byx, and this is your last equation y on x. और इसमें this is your equation y on x, और इसमें आप क्या कर सकते हो, x पुट करके y कैलकुलेट कर सकते हो. दैट कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट. एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज x on y, तो जिसमें आप y पुट करके x कैलकुलेट कर सकते हो. दैट कंप्लीट द सेकंड पार्ट. तो ये दो क्वेश्चन आई थिंक we have already completed in our last session. ठीक है. So please also I have uploaded. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर केस 1 और केस 2 में जो इक्वेशन आया, हाँ, तो केस 1 की इक्वेशन में मॉडिफाई करके अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाए और सिर्फ 5 को रखे तो वही सिमिलर इक्वेशन आएगा क्या? नहीं. ओके, आई थिंक आपका क्वेश्चन क्या है कि ये y इक्वल टू लिखा है, आप इसको x इक्वल टू लिख सकते हो. हाँ सर. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ. सी तो आपका ऑब्वियस मतलब यही होगा कि ये सेकंड केस कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसको x इक्वल टू लिखता हूँ तो मुझे वो x की वैल्यू भी मिल जाएगी. ठीक है. सो वो भी करेक्ट है, बट ये दोनों इक्वेशन हमने इसलिए डिफाइन किए थे, जो y ऑन x का इक्वेशन है आपका, y ऑन x का, विच इज y माइनस वाई बार बी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार, एंड जो x ऑन y का इक्वेशन है x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई y माइनस वाई बार. ओके, सो वाई वी नीड दिस टू इक्वेशन. जैसे अभी आपने ही बोला था कि सर पहला इक्वेशन अगर है उससे ही मैं y भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और x भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. दिस इज द ऑब्वियस योर ऑब्जर्वेशन. ओके, पहले इक्वेशन से मुझे y भी मिल सकता है, x भी मिल सकता है. सो वाई वी नीड दिस सेकंड इक्वेशन. आई थिंक दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है. तो उसका रीजन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार कर रहा हूँ तो आप अच्छे से सुनो. सी, ये जो इक्वेशन है y ऑन x, इट गिव्स मी द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y. Okay, it gives me accurate value of y and this equation gives me accurate value of x. तो अगर आप चेंज कर, मतलब ये जो पहला इक्वेशन है यहाँ से अगर आप x कैलकुलेट करते हो तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा है. ओके, और अगर आप यहाँ से y कैलकुलेट करते हो इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा है. सो वाई वी नीड दिस इक्वेशन, y ऑन x गिव्स मी द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ y दैन x एंड x ऑन y गिव्स मी मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ x दैन y. इसलिए हमने इसको सेपरेट डिफाइन किया. ओके, तो अगर आप इस इक्वेशन से x कैलकुलेट भी करते हो ना तो वो रॉन्ग भी आ सकता है या वो उतना करेक्ट नहीं होगा. यू कैन कैलकुलेट x, देयर इज नो प्रॉब्लम विद x, बट वो करेक्ट नहीं होगा. ओके, या उसमें एरर ज़्यादा होगी. करेक्ट नहीं होगा, इससे बेटर वे हम ये बोल सकते हैं उसमें एरर ज़्यादा होगी. ओके, इसलिए अगर आप ये सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो, सो विच इज मोर एक्यूरेट. ओके, सो एट द एंड इसको अगर मैं सारे स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूँ, सो वाई वी नीड दिस टू इक्वेशन, y on x is used to calculate y and x on y is used to calculate x. This is the final answer. ठीक है. तो इन दोनों का यूज क्या है, एक इक्वेशन का यूज होता है y कैलकुलेट करने के लिए, एक इक्वेशन का यूज होता है x कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा है. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. या, सो नाउ let me take this few questions. So question number 3, the regression equations are given. Okay, the value of variance of x is 9. Means what? Variance of x is 9. Fine. पहला पार्ट क्या है, मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y. मतलब क्या कैलकुलेट करना है? बोलो. x बार y बार. हाँ, वेरी गुड. x बार एंड y बार, ये हमें पहले कैलकुलेट करना है. कोरिलेशन x एंड y मीन्स व्हाट? r ऑफ x y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मीन्स सिग्मा y. ठीक है. सो दिस वी नीड टू फाइंड.
Okay, so let me just focus on the first part. Okay, how you get the mean values of x and y? क्या given है आपको? We have given the regression lines. Okay, so 8x minus 10y plus 66 equal to 0 and 40x minus 18y minus 214 equal to 0. Okay, so these two are the regression lines. These two are the regression lines. Now tell me how you find x bar and y bar. कैसे करोगे आप बोलो? ये इंफॉर्मेशन आपके पास है. These two are the regression lines. इसके आगे कैसे करोगे बोलो? ऑलरेडी मैंने आपको 7 रिमार्क्स दिए थे, ये उस पर ही डिपेंड है. आपके पास रिग्रेशन लाइन्स है और आपको एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मीन वैल्यूज एंड द रिग्रेशन लाइन्स? मीन वैल्यूज एंड रिग्रेशन लाइन में क्या रिलेशन आपको मैंने दिया था रिमार्क में? बोलो, हाँ बोलो, इन दोनों में क्या रिलेशन आपको दिया था अभी मैंने रिमार्क्स में? Sir, that is y minus y dash is equals to byx into x minus x dash. हाँ, सी let me just सी आप x माइनस एक्स बार अभी आप ये बोल रहे हो इज इक्वल टू सपोज बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार. इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो एक्स एंड वाई का इक्वेशन है ना ये. एक्स बार की वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो. अगर आप इसको प्रॉपर लिखते हो तो एट देन इट्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. तो हमेशा ये रिग्रेशन लाइन का फॉर्म यही नहीं होगा, इस फॉर्म में तो कभी नहीं आने वाला. ये ऐसे फॉर्म में दिखेगा इक्वेशन. ओके, ये इनमें से एक लाइन ये होगी, इन दोनों में से एक लाइन होगी एक्स माइनस एक्स बार इक्वल मतलब एक्स ऑन वाई की लाइन होगी. इन दोनों में से एक लाइन होगी एक्स ऑन वाई की, एक लाइन होगी वाई ऑन एक्स की. अभी प्रॉब्लम क्या है कि कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई की है, कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स की, दैट वी डोंट नो. बट अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये ऐसे फॉर्म में दिखाई देगा. अब ये बाद में आने वाला है, वो मैं उस क्वेश्चन को मैं आंसर करता हूँ. इन दोनों में से कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई की है और कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई ऑन एक्स की है. ओके, दैट आई विल आंसर लेटर ऑन. पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यूज एंड रिग्रेशन लाइन. मैंने एक स्टेटमेंट ही दिया था. कैन एनीवन टेल मी दैट अगेन? क्या था वो स्टेटमेंट? इफ आई पुट x इक्वल टू एक्स बार एंड y इक्वल टू वाई बार और द पॉइंट x बार एंड y बार satisfies Equation of regression line. रिग्रेशन लाइंस. क्योंकि आपको इस रिजल्ट से ही समझ में आता है ना. इस इक्वेशन में अगर आप x इक्वल टू एक्स बार पुट करते हो, y इक्वल टू वाई बार पुट करते हो, सो इट विल सैटिस्फाइज रिग्रेशन लाइन. तो ये मेरे पास एक इन जनरल रिजल्ट है that x bar y bar point satisfies regression line. What this implies, and in this case these are my regression line. ये मेरे regression lines है और x bar y bar satisfies these two lines. So इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बोलो? x bar y bar अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 8x bar minus 10y bar plus 66 equal to 0, 40x bar minus 18y bar minus 24 equal to 0. Can I write this? Can I write this? Yes, sir. As these two are the regression lines and we know that x bar y bar satisfies the regression lines, so this implies 8x bar minus 10y bar plus 66 equal to 0 and 40x bar minus 18y bar minus 214 equal to 0. This is nothing but 8x bar minus 10y bar equal to minus 66 and 40x bar minus 18y bar equal to 214. Now just solve these two equations on calculator. You will get the values of x bar and y bar. Let me show you this. Okay, so these are the two regression lines and we know that the point x bar y bar satisfies the regression lines. Okay, so you will get this, and if you solve this on calculator you will get x bar equal to 13 and y bar equal to 17. अब ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? पहला पार्ट समझ में आ रहा है कि रिग्रेशन लाइन से मीन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करने. इज दिस क्लियर नाउ?
आगे बस मैं इक्वेशन चेंज करूंगा बट आपको रिजल्ट वही यूज करना है. ओके, सो इज दिस क्लियर? बोलो. यस सर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट है. कोरिलेशन एक्स एंड वाई. ठीक है, सो एज वी नो दैट दिस टू आर द रिग्रेशन लाइंस और मुझे कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, तो रिग्रेशन लाइंस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ओके, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है. नाउ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बेसिकली क्या है? दिस आर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इन द लाइंस एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, जिसमें से वाई ऑन एक्स लाइन में जो कोएफिशिएंट आता है वो क्या आता है? बी वाई एक्स आता है. एंड एक्स ऑन वाई में जो कोएफिशिएंट आता है वो बी एक्स वाई आता है. बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. ओके, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? नेक्स्ट क्या था? आर कैलकुलेट करना है. आर का फॉर्मूला ये है. ठीक है, तो ये जो बी एक्स वाई बी वाई एक्स है, दिस आर दी बेसिकली द स्लोप ऑफ द लाइंस वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई. वाई ऑन एक्स में बी एक्स वाई आता है, सॉरी बी वाई एक्स आता है, और एक्स ऑन वाई में बी एक्स वाई आता है. ये यहाँ तक तो आपको क्लियर है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस गिवन क्वेश्चन? इसके आगे आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? और कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई? दिस इज इंटरेस्टिंग. इसके आगे आप मुझे कैलकुलेट करके दे सकते हो क्या? बी वाई एक्स क्या है और बी एक्स वाई क्या है और बी वाई एक्स क्या है? या करना है तो कैसे करोगे? क्या प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है यहाँ पे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर बी वाई एक्स के लिए बी एक्स वाई के लिए सर वेरिएंस ऑफ वाई भी चाहिए. बी एक्स वाई के लिए वेरिएंस ऑफ वाई. सी, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनो. हाँ, आप यहाँ आंसर दो. व्हाट आर दिस? And यस, हाँ, पहले मुझे ये sir, now, हाँ, sir, who have the values of the y bar and x bar? Then now we will solve these two equations simultaneously. Then we will get x and y values, and then we put this value in these two equations. So we can get byx and bxy. no. See, you cannot find this x and y because x and y are the variables. It depend on the data. आपके पास मीन की वैल्यू है, एक्स बार की वैल्यू है, वाई बार की वैल्यू है, बट उसके पीछे डाटा क्या है? वो यही क्या आपके पास? इज इट अवेलेबल विद यू? वी जस्ट नो दैट देयर इज सम डाटा व्हिच मीन व्हिच एक्स बार इज समथिंग, जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया है, वाई बार इज समथिंग, बट वेदर वी नो दैट डाटा, वेदर वी नो दैट डाटा? नो सर. हाँ, तो अगर डाटा नहीं है, अगर आपके पास डाटा नहीं है, आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो आपके पास डाटा था, एक्स एंड वाई का डाटा था, तो ही आप रिग्रेशन लाइंस कैलकुलेट कर सकते हो. विदाउट डाटा यू कैनॉट फाइंड दैट रिग्रेशन लाइन. तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन में ही आपको रिग्रेशन लाइंस दिए थे. उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा है. द रिग्रेशन लाइंस आर दिस, द रिग्रेशन लाइंस आर दिस. ओके, लेट मी अगेन कम टू दिस पॉइंट. मैं आपसे आंसर निकालता हूं, डोंट वरी. ओके, फिर से मैं यहीं पे आ जाता हूं. अभी आप वन बाय वन मुझे बोलो. तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? व्हाट इज दिस? दिस आर द रिग्रेशन लाइंस गिवन इन द क्वेश्चंस. अभी बोलो रिग्रेशन लाइंस क्या होते हैं? क्या है रिग्रेशन लाइंस? रिग्रेशन लाइंस आर दिस. दिस इज द इन जनरल फॉर्मूला. अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये मतलब आपके पास रिग्रेशन लाइंस गिवन है, दिस इज द इन जनरल फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन लाइंस, और इस इंफॉर्मेशन से मुझे कैलकुलेट करना है बी वाई एक्स एंड. ये क्वेश्चन है कि कैसे करोगे. जो हमारा जो भी गिवन डेटा रहेगा वो सारे पॉइंट्स तो इन्हीं दो इक्वेशन पे लाया करेंगे ना? हाँ बरोबर, करेक्ट. तो हम इन्हीं का यूज करके हाँ, अगर क्या इसके आगे कैसे करोगे आप? चलो मैं आपको फॉर्मूला भी लिख ले देता हूँ, जरूरत नहीं. ठीक है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला मैं आपको बोल देता हूँ. क्या था वो? कोवेरियंस बी वाई से स्टार्ट हो रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये फॉर्मूला था, करेक्ट है. बी वाई एक्स का कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? 1/n समेशन xi yi माइनस,
करेक्ट है ना, एक्स बार वाई बार। इज दिस करेक्ट कोवेरिएंस का फॉर्मूला? आगे चेक करता हूँ एक बार, प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट लिखा था, हाँ। आगे अभी आप बोलो, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी वाई एक्स यूजिंग दिस? पहले तो ये क्लियर करते, ऐसे बी वाई एक्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? फ्रॉम दिस फॉर्मूला कैन बी फाइंड बी वाई एक्स? yes or no? नो सर। कि इसमें कोवेरिएंस में क्या आ रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये कैसे निकलेगा? हाउ यू गेट समेशन डेटा सम करके फ्रॉम डाटा ओनली ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ यू आर डाटा। अगर डाटा ही नहीं है, डाटा तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, ये तो पता है। ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं जिसमें आप रिवर्सली डाटा कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट एट ऑल। यू कैनॉट फाइंड द डाटा। मीन अगर गिवन है, मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड मीन वैल्यूज ऑफ वाई, वहां से डाटा कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इफ डाटा इज नॉट देयर यू कांट गो विथ दिस फॉर्मूला। अभी पहले बोलो, ये तो समझ में आ रहा है। इफ डाटा इज नॉट देयर विद अस वी कैनॉट फाइंड बी वाई एक्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसमें उन्होंने क्या किया था, आपको डायरेक्टली रिग्रेशन लाइंस दिए थे। मतलब एक डाटा है जो आपको नहीं पता है, बट उस डाटा के करस्पॉन्डिंग दिस आर माय रिग्रेशन लाइंस, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो आपको जो बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है ना, वो डायरेक्टली रिग्रेशन लाइन से कैलकुलेट करना है। नाउ ये मेरा क्वेश्चन है कि इन लाइन से, इन दो लाइन से मुझे रिग्रेशन लाइंस कैसे समझ में आएंगे? ओके, सो सी व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद यू इज from these two lines, these are my two lines, 8x minus 10y plus 66 equal to 0 and 4x minus 18y plus equal to 214, ये मेरे दो लाइन है। मेरा मेजर प्रॉब्लम क्या है, आई डोंट नो विच लाइन इज y on x एंड विच लाइन इज x on y। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे पता ही नहीं कि ये कौन सी लाइन है, ये y on x की लाइन है कि x on y की लाइन है। अगर ये y on x की लाइन आती तो मैं इसको y इक्वल टू लिखूंगा, अगर x on y की लाइन आती तो इसको मैं x इक्वल टू लिखूंगा। प्रॉब्लम आ रही है समझ में? राइट नाउ वी डोंट नो वेदर दिस फर्स्ट लाइन इज x on y और y on x। अगर ये लाइन एज्यूम करते, चलो आपकी पहली लाइन एज्यूम करो, आपकी पहली लाइन y on x की है, सो हाउ यू राइट दिस लाइन, हाउ यू राइट दिस फर्स्ट लाइन? एज्यूम करो कि आपकी पहली लाइन y on x की है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? डिवाइड बाय 10 पहले करना पड़ेगा। हाँ, सो मींस y इक्वल टू लिखोगे ना, y on x मतलब y की वैल्यू आती है, x on y मतलब x की वैल्यू आती है, इतना सिंपल है वो। तो ये आप कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ, आप बोलो करेक्ट है कि नहीं, 8/10 प्लस 66/10। इज दिस करेक्ट? इफ आई से दैट दिस फर्स्ट लाइन इज y on x, अगर पहली लाइन y on x है तो सेकंड क्या होगी? ऑब्वियसली आपको पता है रिग्रेशन लाइंस में एक लाइन होती है x on y की और एक लाइन होती है y on x की, ये फिक्स होता है। दिस आर कॉल्ड एज रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन लाइंस में अगर आपकी एक लाइन y on x है तो सेकंड लाइन कंपलसरी x on y होगी। अगर आपकी एक लाइन x on y की है तो सेकंड लाइन आपकी कंपलसरी y on x होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे जो पहली लाइन है ये y on x की लाइन है, इफ आई से दिस देन, तो उसके बाद मैं इसको y इक्वल टू लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली सेकंड लाइन क्या होगी मेरी, x on y की होगी, तो मुझे सेकंड लाइन से x की वैल्यू लिखनी होगी। सो दैट गिव्स मी 18/40 y माइनस प्लस 214/40। इज दिस करेक्ट? एज्यूम करता हूं ना, मुझे पता नहीं है, बट मैं सपोज करता हूं, चलो, क्योंकि दो तो पॉसिबिलिटी है ना, दिस इज वन पॉसिबिलिटी और एक और पॉसिबिलिटी में लिख लेता हूं। ये तो समझ में आ रहा है? यस सर। एज्यूम किया है मैंने, मुझे पता ही नहीं था कि पहली लाइन मेरी क्या है। आई डोंट नो वेदर माय फर्स्ट लाइन इज y on x और x on y। चलो एज्यूम करते हैं कि ये लाइन आपकी y on x है, तो यही इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। अभी इसके आगे मुझे बोलो, इफ आई एज्यूम फर्स्ट लाइन एज y on x एंड सेकंड लाइन एज x on y, ओके, फ्रॉम दिस डाटा कैन यू टेल मी नाउ by(x) एंड bxy? कैन यू टेल मी नाउ? अभी कंपेयर करो ना, by(x) क्या होता है, y इक्वल टू लिखने के बाद by(x) कौन सा कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। इज दिस करेक्ट?
y ऑन x में रिग्रेशन लाइन y ऑन x में by x कैसे कैलकुलेट करना है, x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे x ऑन y में xy कैसे कैलकुलेट करना है, y का कोएफिशिएंट। नाउ टेल मी व्हाट इज by x एंड bxy। अभी बोलो, आना ही चाहिए अभी। ये कौन सी लाइन है, y ऑन x। y ऑन x में क्या देखना है, बस क्या देखना है, x का कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट, वो क्या है 8/10। 10, सो दैट गिव्स मी by(x). हो गया। से आप देखो, डाटा नहीं है आपके पास, आपने डायरेक्टली रिग्रेशन लाइन से कंपेयर करके ये निकाला। एंड सेकंड इक्वेशन में bxy क्या होगा, 18/40। 18/40. 18/40। ओके, ये एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या किया था, आई डोंट नो द फर्स्ट लाइन, तो मैंने ऐसे एज्यूम करके यहां तक निकाला है। अभी आपको पता है देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। ओके, ऑब्वियसली आपकी वो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे नहीं हो रहा है। व्हाट इज माय सेकंड पॉसिबिलिटी, मैं नीचे कर देता हूँ। व्हाट इज माय सेकंड पॉसिबिलिटी, आपकी पहली लाइन क्या होगी, x on y। x ऑन y। तो x ऑन y आती है, अगर मैं लेता हूँ तो x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू लिखना होगा। सो लिख लेता हूँ मैं 10/8 y माइनस 66/8। एंड सेकंड लाइन ऑब्वियसली क्या होगी फिर y ऑन x। फिर मुझे y इक्वल टू लिखना होगा। सो y इक्वल टू क्या लिखना होगा, y तो 40/18 माइनस 214/18। इज दिस करेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा, कोई भी बुक रेफर करो कि कहीं पे किसी भी बुक में नहीं है। हाँ, इज इट करेक्ट। नाउ इस सेकंड केस में बोलो, दिस इज माय फर्स्ट केस। हाँ, नाउ सेकंड केस में आप मुझे बोलो व्हाट इज bx एंड by(x). सेकंड केस आप देखो और मुझे बोलो by(x) क्या होगा सेकंड केस में, क्या कुछ तो, हाँ x सही है। by(x) क्या होगा सेकंड केस में, 40/18 एंड ये bx by 10/8। 10/8। ओके, तो हमने हमने सो वी डोंट नो दैट वेदर दिस फर्स्ट लाइन इज x ऑन y और y ऑन x। तो हमने सेपरेट दो केसेस किए, एक बार इसको y ऑन x बोला, एक बार उसको x ऑन y बोला। अभी ये तो आपको क्लियरली पता है इन दोनों में से एक केस आपकी करेक्ट होगी, क्योंकि दिस आर द रिग्रेशन लाइंस। अगर ये इन दोनों को मैं रिग्रेशन लाइंस बोलता हूं ना, तो इनमें से एक केस आपकी करेक्ट होगी, एक केस आपकी रॉन्ग होगी। करेक्ट बोल रहा हूं मैं, yes or no? इफ दिस आर द रिग्रेशन लाइंस, तो इन दोनों में से एक पार्ट करेक्ट होगा, एक पार्ट रॉन्ग होगा। करेक्ट है, yes or no? यस। हाँ, तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको अभी एक रिजल्ट यूज करना है, जो मैंने आपको बोला था कि मुझे आगे जाके चाहिए। तो दिस रिजल्ट इज दिस, दैट r इज लाइज बिटवीन -1 and 1। यही एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये पहली लाइन आपकी x ऑन y है या y ऑन x है। देखते कैसे। हाँ, अभी आप काम करो, फर्स्ट केस में मुझे r कैलकुलेट करके बोलो क्विकली। अंडर रूट ऑफ by(x) इंटू by(x), अंडर रूट में इन दोनों का प्रोडक्ट लेके मुझे बोलो r की वैल्यू क्या आती है। डू इट फास्ट। अंडर रूट में इन दोनों का प्रोडक्ट करो और मुझे बोलो r की वैल्यू क्या आती है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में भी चाहिए। 0.6 करो 0.6 फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, 0.6 0.6। सेकंड केस में कैलकुलेट करो 1.67। 1.67। अभी आप बोलो कौन सी केस करेक्ट है, कौन सी फर्स्ट केस। फर्स्ट केस, क्योंकि r की वैल्यू जो है वो -1 to 1 के अंदर ही, मतलब इट लाइज बिटवीन -1 and 1 ओनली। तो ये इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है ना। तो ये सेकंड केस ऑब्वियसली आपकी रॉन्ग होगी। सेकंड केस रॉन्ग होगी मतलब ये एजम्पशन भी आपका रॉन्ग होगा। इसका मतलब क्या होगा, व्हाट दिस इंप्लाइज, दिस फर्स्ट लाइन इज, क्या ये फर्स्ट लाइन y ऑन x, एंड क्या ये सेकंड लाइन x ऑन y, एंड व्हाट इज r इज 0.6। Are you getting this? Are you getting this or not? Yes, sir. ये लिखना कैसे है ना, वही आपका प्रॉब्लम है सर, इसको लिखना कैसे। सो लेट मी शो यू दैट। ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको अभी बोला था। दोनों केसेस में कैलकुलेट करना होगा, कोई इजी भी नहीं है इसके लिए, दोनों केसेस में आपको कैलकुलेट करना होगा। लेट मी जस्ट शो यू दिस, एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ अभी भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अभी आपको r कैलकुलेट करना था, या r का फॉर्मूला है, बट bx by by(x) कैलकुलेट करने के लिए आपको y ऑन x चाहिए और x ऑन y चाहिए। मतलब
वी मस्ट नो दैट विच लाइन इज वाई ऑन एक्स, क्योंकि लाइन समझ में आते तो आप उसको वाई इक्वल टू लिख सकते हो। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू लिखने के बाद बी वाई एक्स क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है, और एक्स इक्वल टू लिखने के बाद पी एक्स वाई क्या होता है, वाई का कोएफिशिएंट होता है। ये आपको पता ही है। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट, वी डोंट नो विच लाइन इज वाई ऑन एक्स एंड विच लाइन इज एक्स ऑन वाई। तो उसके लिए आपने क्या किया है, दो केसेस किए। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट लाइन है, ये मेरी सेकंड लाइन है। एक बार मैं इसको क्या बोलूंगा, एक बार इसको मैं क्या बोलूंगा, y ऑन एक्स, एज्यूम दिस एज y ऑन एक्स, तो इसको मैंने y इक्वल टू लिखा है। ठीक है, तो y इक्वल टू लिखने के बाद मुझे बी वाई एक्स समझ में आएगा। और सेकंड लाइन, सॉरी, और एक बार मैं x इक्वल टू लिखता हूँ, एक ही लाइन है, अप्रोच बस अलग अलग है, एक ही लाइन है। इसको एक बार मैं y इक्वल टू लिखता हूँ, एक बार x इक्वल टू लिखता हूँ। y इक्वल टू लिखा तो बी वाई एक्स मिलेगा, x इक्वल टू लिखता हूँ तो बी एक्स वाई मिलेगा। इससे अच्छा है कि मैं चारों केसेस सामने रखता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट केस, दिस इज माई सेकंड केस, ऐसे जा सकते हो। ओके, सो एज्यूम दैट फर्स्ट इज y ऑन x, सेकंड इज x ऑन y। ये ऐसे होता है। हाँ, मैं थोड़ा इसको और करेक्ट करता हूँ। एक बार इसको y ऑन x कंसिडर किया था, हाँ, एक बार इसको y ऑन x कंसिडर किया तो इसकी केस जाएगी यहाँ पे। ओके, सो इफ आई कंसिडर फर्स्ट एज y ऑन x, you will get by(x) is 0.8, and if I consider second equation is second equation as x on y, then you will get bxy as this. एंड सेकंड केस आपकी क्या होगी, सेकंड केस ये होगी, ये एरो पे फोकस करो, सेकंड केस ये होगी। ओके, सेकंड केस क्या होगी, इसको x ऑन y करो और इसको y ऑन x करो। x ऑन y करते तो bxy मिलेगा, y ऑन x करते तो byx मिलेगा, एज इट इज। या आप कैसे भी लिखो, इट डजेंट मैटर कि ऐसे ही लिखना, आप कैसे भी लिखो। ठीक है, और इन दोनों केसेस में कैलकुलेट करो। सो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.45, इन दोनों का आंसर आता है 0.6, अभी आपने ही बोला था। एंड सेकंड केस का आंसर आता है 1.6। तो इसलिए ये ऑब्वियसली रॉन्ग होगा, जिसको मैंने क्रॉस किया, और यही आपका फाइनल आंसर होगा जो मैंने यहाँ पे शो किया। तो ये आप सेपरेट भी कर सकते हो। केस 1 करो सेपरेटली, केस 1 सॉल्व करो, केस 2 करो, केस 2 सॉल्व करो, केस 1 में आर कैलकुलेट करो, केस 2 में आर कैलकुलेट करो। जहाँ पे आर ग्रेटर दैन, जहाँ पे आर इन इस रेंज में नहीं आता है, वहां पे आप लिखो विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस केस 1 इज करेक्ट। ऐसे भी आप रीजनिंग दे सकते हो। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आर। तो इसलिए पहली लाइन आपकी y ऑन x होगी एंड सेकंड लाइन आपकी x ऑन y होगी। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन इक्वेशन, वही रिपीट किया है मैंने, टेबल का एक पार्ट रिपीट किया। ऐसे आप जा सकते हो। Your R is 0.6. चलो, ये हो गया। नाउ द लास्ट केस इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सिग्मा y कैलकुलेट करना है। दिस इज द लास्ट पार्ट। कैसे करोगे बोलो। एंड वी हैव गिवन समथिंग, व्हाट वी हैव गिवन, यही पे एक्सप्लेन, स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, हाँ, यही पे एक्सप्लेन करता आपके सामने Variance of सारी चीजें रहेगी। आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा y, आपको गिवन है वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9। तो इससे क्या मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, व्हाट इज दैट, 3. रूट ऑफ 9 मतलब 3। अभी आप बोलो, आपके पास सिग्मा x है, आपको कैसे करोगे, टेल मी अ फार्मूला बाय व्हिच यू विल गेट दिस सिग्मा y। bxy is equals to r into sigma x upon sigma y. वेरी गुड। ओके, तो ऑलरेडी आपने इस टेबल में बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कैलकुलेट किया था, है ना। ये 0.8 एंड नीचे गया क्या मैं ज़्यादा, इस यहाँ पे है ना, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आपने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट ही किया है ना, रिग्रेशन लाइन मतलब आर कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बी वाई एक्स था, बी एक्स वाई था, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो। अगर मैं बी वाई एक्स का करता हूँ तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। आपको चाहिए था सिग्मा वाई, दिस वी हैव टू फाइंड, वी हैव गिवन दिस, ये भी आपने कैलकुलेट किया है, आर भी आपने कैलकुलेट किया है, तीनों के वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट सिग्मा वाई। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू दिस आंसर। इसमें आगे का पार्ट रिमेनिंग है, तो ये सिग्मा एक्स 3 है, आपको चाहिए था सिग्मा वाई। सो बी मैं लिख लेता हूँ, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी वाई एक्स क्या है 0.8, आर क्या है 0.6, सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स क्या है 3। कैन एनीवन टेल मी दिस, व्हाट इज सिग्मा वाई, करो आप और बोलो मुझे। 4. हाँ,
क्या है? 4 4 4, ठीक है, प्लीज करेक्ट दिस, डन। ये एक क्वेश्चन है जिसमें 3 to 4 MCQs आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल। एक और थोड़ा सिमिलर ही क्वेश्चन लेता हूँ। अभी आपको 80% भी समझ में आता है ना, ये आगे रिपीट होगा, डोंट वरी, ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि इमीडिएटली फर्स्ट लॉट में समझ में आएगा, बट क्लियर करते जाओ। इफ 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस, तो इस क्वेश्चन में भी आपको लाइन्स ऑफ रिग्रेशन गिवन है, ओके, 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दिस एंड द मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई, मीन भी गिवन है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना लैम्बडा एंड म्यू, पहला क्वेश्चन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स एंड वाई। अभी आप बोलो, मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। सो मैं लिख लेता हूँ, वी हैव गिवन द रिग्रेशन लाइन्स। Excuse me, sir. हाँ, यस, I think it's already time up, sir. ओके, टाइम हो गया क्या? ओके, 12 तक ही था क्या? सॉरी, ओके, स्टॉप हियर टुडे।